میں بنیاد پرست نہیں ہوں، میں انتہا پسند نہیں ہوں. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو شرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، ورنہ ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں، مسلمان کہنے کے لائق نہیں. تیسری غلط فہمی، تیسرا شبہات، اکثر میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے. اور کئی بار آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان کو وہ کچھ کام کر رہا ہے اور اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے 2 القاب، 2 لیبلز. اور ایک اچھی کروں گا، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے جب ہمارا ہندوستان، جب ہمارے دیش کو آزادی، انگریز ہم پہ حکومت کرتے تھے، تب کئی ہندوستانی اپنے دیش کے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. ان لوگوں کو انگریز کہتے تھے دہشت گرد، ٹیررسٹ. وہی لوگوں کو ہم ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ دیش بھکت ہے. پیٹریوٹ ہے. وہی انسان، وہی کام، 2 القاب. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت، انگریز کو حق ہے ہندوستان پہ حکم کرنے کا، تو آپ ان کو بے شک کہیے کہ وہ دہشت گرد ہے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہم پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم ان لوگوں کو بے شک پیٹریوٹ کہیں گے، دیش بھکت کہیں گے. وہی انسان، وہی کام، 2 القاب. اکثر جب میں میڈیا کے سامنے کوشچن آنسر، سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے میرا، تو میڈیا اکثر مجھ سے پوچھتی ہے گرد کیوں ہیں؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میڈیا 60 سال پہلے، انگریز کی میڈیا 60 سال پہلے کہتی تھی کہ بھگت سنگھ دہشت گرد ہے. کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں؟ آپ اس بات کو مانتے؟ نہیں، بے شک غلط ہے. تو میں کہتا ہوں میں بھی اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ دہشت گرد تھا. لیکن وہی انگریزی میڈیا آج جب کہہ رہی ہے مسلمان دہشت گرد ہے، آپ کیوں اس بات کو مانتے؟ ہنسنے لگتے ہیں. ہم نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہے. ہندوستان کی تاریخ سے ہم جانتے ہیں کہ بھگت سنگھ ایک دہشت گرد نہیں تھا، وہ اپنے دیش کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا. تاریخ جانتے ہیں. کم از کم 99% ہندوستانی یہ مانتے ہیں کہ دیش بھکت بھگت سنگھ دیش بھکت تھا، دہشت گرد نہیں تھا. تو آج جب وہی میڈیا مسلمانوں کو الزام لگا رہی ہے مسلمانوں پہ کہ وہ دہشت گرد ہے، آپ کیسے اس کو مانتے؟ کیا آپ نے تحقیق کی؟ ہنسنے لگتے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، کہ جب بھی آپ پہ کوئی بھی آپ کے پاس پیغام لے کے آتا ہے، اس کی تحقیق کرو دوسروں تک پہنچانے کے پہلے. اسی لیے لقب دینے کے پہلے یہ تحقیق کرو کہ کس وجہ کے لیے وہ انسان جدوجہد کر رہا ہے. اور یہ عام ہے، 2 لقب دینا عام ہے، اور میں آپ کو سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں اس کے بارے میں. آپ جب پڑھیں گے امریکن ریولوشن کے بارے میں 19ویں صدی میں 1895 1875 میں،
कई अमेरिकन उसकी आजादी के लिए लड़ रहे थे। उस वक्त अंग्रेज अमेरिका पे हुकूम कर रहे थे, अंग्रेज अमेरिका पर हुकूमत कर रहे थे। अंग्रेज कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज वॉशिंगटन। 1875 के बाद जब अमेरिका को आजादी मिलती है, सबसे पहला अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है जॉर्ज वॉशिंगटन। आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। ऐसे कई मिसाल है। साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के पहले गोरे साउथ अफ्रीका पे हुकूमत करते थे। इट वॉज द अपार्थाइड सिस्टम। भेदभाव था रंग का। गोरे समझते थे कि हम सुपीरियर है, हम आला है। जब गोरे हुकूमत करते थे उस वक्त उन लोगों ने नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था और रॉबिन आइलैंड में 25 साल से ज्यादा कैद में रखा। और उस वक्त सफेद हुकूमत, गोरे की हुकूमत कहती थी कि नेल्सन मंडेला इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, सबसे बड़ा टेररिस्ट है। जब साउथ अफ्रीका को आजादी मिलती है, नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है और वो बन जाता है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। आप सोच सकते हैं, सबसे बड़ा दहशतगर्द बन जाता है साउथ अफ्रीका। और चंद साल बाद उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि नेल्सन मंडेला खराब इंसान था और अच्छा बन गया, वही काम के लिए जिसे उसे दहशतगर्द कहा गया था, उसी काम के लिए उसे चंद साल बाद मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो हमें यह पता लगता है ये सारी तारीख पढ़ने के बाद कि जिसके पास पावर है वो जो भी लक़ब देता है इंसान को चिपक जाता है। सही है गलत उसे कोई लेना देना नहीं। अगर जो पावर में है आज, जिसके पास मीडिया का कंट्रोल है, वो जो लक़ब देता है इंसान के लिए, वो लक़ब चिपक जाता है, चाहे वो सच हो या गलत हो। इस्लाम में हमें तहकीक करना चाहिए लक़ब देने के पहले, क्या वो सही या गलत है। चाहे ताकतवर इंसान लक़ब दे या कमजोर इंसान लक़ब दे, हमें तहकीक करना चाहिए लक़ब सही है या गलत है। चौथी सबसे आम गलतफहमी इस्लाम के मुतालिक है कि इस्लाम तलवार के जोहर पे फैला। इस्लाम तलवार जोर पे फैला। और इसका जवाब यह है कि इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, सलामती। तो अगर मैं तर्जुमा करूंगा इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, उसकी मानी होती है सलामती तलवार के जोर पे फैली। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग। और इस गलतफहमी का जवाब सबसे बेहतरीन तरीके से देते हैं ओलेसी ओलेरी। ये एक मशहूर मुहर्रिक है, हिस्टोरियन है, डिलेसी ओलेरी। डिलेसी ओलेरी लिखते हैं एक किताब में, इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 में, हिस्ट्री मेक्स इट क्लियर दैट द लेजेंड ऑफ फैनेटिकल मुस्लिम्स sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword over conquered races, is the most fantastic myth that historians have ever repeated. दिल्ली से ओलेरी कहते हैं किताब में इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 में, कि
तारीख के जरिए हमें साफ मालूम पड़ता है कि वो लेजेंड, वो कहानी कि मुसलमान जो भी देश के ऊपर हमला करके जीतते हैं, तलवार के जोर पे अपना मजहब फैलाया, वो सबसे भयानक कहानी है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है। तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने अरब मुमालिक पर 1400 साल तक हुकूमत की। चंद साल के लिए अंग्रेज आए, चंद साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन तारीख गवाह है कि अरब मुमालिक पे हम मुसलमानों ने 1400 साल तक हुकूमत की। लेकिन आज भी 140 लाख क्रिश्चियंस है जो अरब है। आज 1,40,00,000 अरब है जो ईसाई है, सदियों से ईसाई है, नस्लों से। कॉप्टिक क्रिश्चियंस 14 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियंस, 1,04,00,000 क्रिश्चियंस है जो ईसाई है, सदियों से, नस्लों से। अगर हम मुसलमान चाहते तलवार के जोर पे हर एक अरब को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की, अंदलस पर। हमने हमारा काम नहीं किया, हमने इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाया। क्रूसेडर्स आए, ईसाई आए, मुसलमान को साफ किया। एक मुसलमान भी खुली तौर पे आजान भी नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत की, मुगल्स ने। अगर हम मुसलमान चाहते हर एक हिंदुस्तानी को तलवार के जोर पे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। आज हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं। ये 80% से ज्यादा गैर मुसलमान हिंदुस्तान में शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। हर को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया, और इस्लाम हमें इसकी इजाजत। आज वो देश इंडोनेशिया जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, मैं पूछना चाहता हूं कौन सी इस्लामिक आर्मी, कौन सी मुसलमान की फौज इंडोनेशिया गई जहां आज 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। मलेशिया में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। कौन सी मुसलमान फौज मलेशिया में गई थी? कौन सी मुसलमान फौज वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी? कौन सी फौज, कौन सी तलवार? कार्लाइल एक फेमस मुहर्रिक, हिस्टोरियन और राइटर, वो लिखते हैं अपनी किताब हीरोज एंड हीरो वर्शिप में, हीरो और हीरो वर्शिप, हीरो और हीरो परस्ती में। और वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन थॉमस कार्लाइल लिखते अपनी किताब में कि मेरा सबसे बड़ा हीरो प्रॉफिट, हीरो पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो लिखते हैं कौन सी तलवार? आपको अपनी तलवार को ढूंढना पड़ेगा। हर सोच, हर आइडिया सबसे पहले बार एक इंसान के जहन में जन्म लेती है। एक इंसान सारे इंसानों में, एक शख्स सारी दुनिया में। वो शख्स को क्या सफलता मिल सकती अगर वो तलवार के जोर पे अपनी आइडिया फैलाएगा? आपको अपनी